Hello and welcome to JeemCast. Don't forget to subscribe our channel because we are trying to create an impact. And अगर आप लोगों ने subscribe नहीं किया होगा तो हम impact नहीं create कर सकते. Anyways, welcome to the 19th episode of JeemCast. शुक्र है ऑन स्पॉट यार क्या मैं बहुत अरसे बाद नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों. मैं अभी ये क्या लगी थी, आई थिंक यू गेटिंग नर्वस इवन तो हमें होना चाहिए नर्वस. नहीं मुझे इजी हो गया है माय नर्वसनेस को देख के मैं इजी हो गया हूँ. दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर बीइंग ऑन कैमरा. अच्छा लाइक आई मेंशन्ड अदर देन आवर शादी वीडियोस और उसमें उसके बाद दिस इज माय फर्स्ट टाइम. लाइक आई कैन बी ऑन कैमरा लेकिन अगर मैं खुद ले रही हूँ नहीं मैं पहले लाइक 10 तक था, फिर मैं लाइक जेल हो गया, लेकिन अभी पता नहीं कैसे है. लेकिन लेट्स स्टार्ट. हैपेंस नेचुरल. इट्स ओके. Hello and welcome to the 20th episode of JeemCast. Today we have Syha and Hazik with us, who are both co-founders of Pookidevs, and they are also married. So how? Essential. तो मेरा पहला सवाल ये है कि like अगर if I get married तो I will. Why is there an if in there? I'm interested in that. Like I'm just going to turn this podcast around and start asking you questions. Why don't you want to get married? What's the story behind that? Yeah, मुझे I'm kidding. like, Please. नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता. Like I don't like think about it. Lekin if I do get married, तो I would like to get married to someone who I can build something with. Yeah. So you guys are co-founders and are married. तो बताएं कि वो मतलब वो दूर से ही अच्छा लगता है या असल में भी अच्छा है? और लाइक और शादी पहले हुई थी या फाउंडर्स पहले बने थे? Founders. We founded Pookidevs in 6th semester के बाद की जो break आती है ना उसमें. Nice. So how all that happened? The शादी और the Pookidevs. Like I think it's simultaneously सब कुछ हो रहा होता है ना? You more or less, huh? So I think the entire story goes a little bit back from founding Pookidevs as well. जहाँ पर we knew each other and we were very good friends since the first semester. We were classmates. Best friend. Best friends. So we were really good friends, and you know we really instantaneously आपको ना एक दूसरे बंदे से जब interact कर रहे हो तो you feel that click, right? Yeah. In terms of your mindset, in terms of your drive, your sense of humor even. Humor. Humor. Syha's sense of humor was the first thing that you know made us. I felt comfortable that finally कोई मेरे जैसा, because I normally you know inclined towards dark humor. तो मुझे पहला बंदा मिला था who likes dark humor, and I was like finally. So moving from that, I think it was 5th semester probably. 5th semester ke baad, it was towards the end of the 5th semester where we were working on a project for a course of ours. And you were like, yaar, ye interesting idea hai. वो project बनाना था, एक छोटा सा portal सा बनाना था, you can say. Yeah. So it was Syha's idea कि there should be a platform. Something we might do in the future. Maybe keep your eye out for that. And you can't steal, anybody who's watching, you can't steal this idea. So please. So it was a pretty interesting idea that there should be an e-commerce platform, e-commerce store for anything and everything art. Specifically art basically. Okay. Okay, so can I take this from here? So it was basically sorry, I'm interrupting you, लेकिन we are doing that with Impostart. Yeah. No, but that was different. Achha, so here's the main twist, right? So थोड़ी सी पुरानी बात है. I used to be an Instagram influencer. जब ये थोड़ा सा new थी चीज़, like I think A level से O level से, right? But I was into, like, I've always wanted to become movies के अंदर makeup artist नहीं होते, like horror movies में and all. So I wanted to become one of those, right? So I love doing special effects makeup. So and जब when I started this, so there was literally no market, कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में. Like people used to look at my stuff and they used to be like, क्या कर रही हो भाई, क्या हो गया, what is this, you, and stuff like that, right? It would be
थ्रोट कट हुआ हुआ है, हाथ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, वो साइलेंस ऑफ द लैम्स वाला पोस्टर बना हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टफ. तो उस टाइम पे सीन ये था कि अभी भी आई हैवंट एक्सप्लोर्ड द मार्केट, बट ये इनके जो स्टफ होता है ना वो पाकिस्तान में नहीं होता था. तो आई यूज्ड टू मेक थिंग्स एट होम, लाइक माई ओन वैक्स, माई ओन एवरीथिंग, माई ओन ब्लड एंड स्टफ ना. मैं लिटरली किचन में जाके ना चूल्हे पे बनाती होती थी चीज़ें. तो बट हाँ, तो मुझे ये था कि वी शुड स्टार्ट समथिंग जो कि इसको प्रमोट करे, राइट. बेसिकली स्टार्ट सेलिंग, स्टार्ट सोर्सिंग स्टफ ऐसा, और फिर स्टार्ट सेलिंग दिस स्टफ ताकि ये चीज़ आए, बिकॉज उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी ये चीज़, राइट. तो उस पे था मेन आइडिया. दैट वाज हम लोग का एक सेमेस्टर का फाइनल प्रोजेक्ट था, एंड आई मेड एन ऐप, वी मेड एन ऐप उसके ऊपर जो कि ये बेच रही थी चीज़ें, राइट. ओह नाइस. सो एंड वी वांटेड टू go forward with that, but we couldn't because हमें सामान नहीं मिला. We explored a lot of different places. अच्छा. पिंडी, लाहौर, even कराची. के different. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ कि जिस तरह की चीज़ें हम ढूंढ रहे थे, instead of finding them in art stores or conventional stores, वो हमें चीज़ें मिली थी chemists के पास, like जो laboratory chemists होते हैं ना, उन तरह के लोगों के पास. और सदर में आप चले जाओ, पिंडी में तो छोटे बाज़ार में, for anybody who's been there, they'll know कि वहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट की दुकान है, वहाँ पे वो थोड़ी सी चीज़ें मिली, लेकिन essentially जो हम मेन चीज़ें ढूंढ रहे थे, we found out कि यार ये तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट ही करवानी पड़ेगी. Being undergrads, having no money at all, we were like यार ये अभी तो हम नहीं कर सकते, तो let's put it on hold. लेकिन during that time, so with that idea, there was a acquaintance of mine, far off family friend you can say, who was working in NIC at the time. तो ये लाइक यार NIC कुछ है, स्टार्टअप वाला कुछ है, तो अंडरग्रेड्स कोई एक्सपोजर नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है. बस किसी ने फैमिली से बताया था हाँ वो इस तरह कुछ कर रहा है. मैंने यार उससे पूछते हैं जाके. तो उससे जाके पूछा, उसने काफ़ी गाइड किया ही, मतलब जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना ऑफ स्टार्टअप, जो कोर स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं आपके, तो वो उसने मेंशन किए. लेकिन ऑब्वियसली उसको हमने फॉलो भी किया, काफ़ी कोशिश की, लेकिन नहीं मिली चीज़ें, तो वी जस्ट गॉट रिड ऑफ दैट आइडिया. फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू मंथ्स एंड Pookidevs came about. तो उसका भी idea was essentially Syha's again. She's the, I would say, ideator in this entire thing. And I think I'll hand it over to Syha to talk about how that entire thing started off. Yeah. Oh, that's a funny story. So the idea जो मेरा Hazikq का पहले था, that did not work out. सही है. तो yeah. So there was a time कि हम लोग का ना जब 6th सेमेस्टर के बाद ना नॉर्मली वो FIP वाला सीन शुरू हो जाता है ना. तो अब मेरा जो ग्रुप था, 2 और हमारे फ्रेंड्स हैं, बेसिकली co-founders of Pookidevs as well, उनके साथ था. एंड वी वर लाइक दोज एफिशिएंट स्टूडेंट्स जिन्होंने ना पहले से काम करना शुरू कर दिया. Yes, I saw that on your LinkedIn. तो हमने ना पहले से काम करना शुरू कर दिया था. लाइक हम वेकेशंस में जाके ना अपना सुपरवाइजर फाइनल कर लिया था, उनके साथ डिस्कशंस कर रहे होते थे. तो उनके साथ इन वन ऑफ दोज डिस्कशंस जब वो आई थिंक इधर उधर हुए थे या कुछ कर रहे थे, सो इट वाज लाइक एक और co-founder है शाहरुख, सो मेरे और शाहरुख के आपस में हुई कि कुछ शुरू करना है यार, कुछ करते हैं. तो फिर दैट्स एंड देन उस टाइम पे Hazik was in friends with बाकी co-founders उस टाइम पे, सो वी बेसिकली 5 co-founders, राइट. तो मैंने शाहरुख से कहा कि बट कैसे क्या एंड स्टफ, राइट. So then we planned कि अच्छा, Shahrukh was like I know someone who can do designing and UI UX, and I know someone who's good at tech stuff, and Hazik was really good with ops and stuff, right. I was like I know someone who can do that, so let's do this. Nice. And that's how we started it. So how does having so many co-founders work? क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे डिसीजन मेकर्स हैं, फिर उसके बाद कभी कभी तो लाइक सबकी इक्वल इक्विटी होती है, तो उसमें फिर आप लाइक कुछ डिसीजंस पे फंस जाते हैं. So how did you work that out? Very interesting question. And again, we just to add to that, we again went to that guy that I mentioned just a few minutes ago to ask for advice on how to carry this forward. And that's the exact same thing that he said कि 5 co-founders एक startup में as undergrads तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? तुम लोग एक सर्विसेज कंपनी, तो we're basically a services company, right? तुम सर्विसेज कंपनी खोलना चाह रहे हो 5 co-founders के साथ. How do you plan on making that work? हमने कहा यार कर लेंगे कुछ ना कुछ, देखते हैं हो जाएगा. तो लेकिन you're absolutely right, decision making was a pain.
And especially between myself and Shahrukh, when I came on board, Shahrukh and I have, you can say, the same drive and the same mindset, but very different approaches, very polar opposites. तो हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, इतनी बहस होती थी, मैं बता नहीं सकता. लेकिन the one thing that you can say it added to the success and added to making sure that this works out was that at the end of the day, we were open enough to communicate with each other and to take each other's advice, take each other's opinions into account, and reach a final mutual decision, right? Between everybody, between all of the 5 co-founders. And that understanding, that instant instant respect for one another and one another's opinions, one another's skills, that is, I think, that has led us to this point 3.5 years after that, where the company is still standing and has 14 employees right now. I think the smartest thing we did in the start was what we heard from so many people was like, यार दोस्तों में नहीं चलते businesses and दोस्तों में दोस्तियाँ टूट जाती हैं and all that stuff, right? तो लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ की थी, like we took a stand and we were like, अच्छा we'll elect someone जो हमारे ऊपर होगा, like out of the 5 of us, हम we weren't giving each other any title at that time because हम 5 लोग थे, हम क्या बनते हम किसका CTO बनते किसका CEO बनते, लेकिन खैर anyway, so but we did say कि यार हम लोगों ने तब it was a mutual vote और हमने ना शाहरुख को एज अ टीम लीड कर दिया था इलेक्ट. ठीक है. एंड उस टाइम पे मतलब ही हैड द वीटो पावर देन डिसीजन मेकिंग में ना, मतलब ऑब्वियसली वो वर पीपल जो दे सकते थे, कुछ कर सकते थे, बीच में बोल सकते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे ही वाज द वन taking decisions, right? So I think that's one smart thing that we did, and we all उसकी वजह से I think we were able to separate business from our friendship. Like we're all still very good friends. Nice. और मतलब even I think आज मेरी और शाहरुख के ऑफिस में आज हुई है like proper like बहस हुई है about some business decision, right? लेकिन उसके बाद we were like चलो खाना खाने चलते हैं. अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे कॉल आ रही है, चलो खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है आ जाओ. Like Alhamdulillah, like I think that was one thing that we accepted उस टाइम पे कि यार अगर हम इसको टीम लीड रख रहे हैं, we are going to respect his decisions, लेकिन वो बिजनेस हद तक है, they're not going to affect us personally. Like हम लोगों ने वहाँ पे वो जो लाइन ड्रॉ की थी ना, I think that was one of the first few factors जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग. I think it's very necessary. When doing anything with your friends, it's very difficult as well. It's very very difficult in a practical sense, लेकिन like I said, very necessary. And you should always do that कि यार ठीक है, business है, आप कर रहे हो काम साथ, काम अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह. You never let one thing affect the other. Yes. So as long as you do that, doesn't matter if he's your best friend or you don't know the person at all, it's gonna work out. So अभी आप लोगों का like ऑफिस किधर है and growth कैसे आई? Like पहले तो आप 5 लोग थे, फिर उसके बाद you decided to lead. I think वो एक अच्छा मूव था क्योंकि there should be एक person जो कि लीड कर रहा हो और सब कुछ हैंडल कर रहा हो. तो उसके बाद like growth वाला फेज कैसे आया? अच्छा, सो अगेन फनी स्टोरी. सो जब ग्रेजुएट हो गए थे तो वो एक टाइम होता है जब ऑब्वियसली पीपल है लाइक खास करके लाइक इन आवर सोसाइटी आई बिलीव लड़कों पे बहुत प्रेशर होता है कि अच्छी नौकरी होनी चाहिए, पे ज़्यादा होनी चाहिए एंड स्टफ तो हम लोगों ने तो 1 साल पूकीडेव्स में विदाउट एनी पे काम किया ना, जब ठीक है हम तब यूनिवर्सिटी में थे, बट वी weren't getting anything in return, right? So हम लोग जो हमारे पास आता था, because we started with zero investment, तो जो हमारे पास आता था we were pumping it back into the company, right? तो वो सीन था. तो उसके बाद से ना people started dispersing. Obviously सबकी अपनी वजह होती है. मैं सरकारी नौकरी की थी मैंने भी 2 साल. अच्छा. Yeah, but like वो I had to sort of, तो मुझे स्कॉलरशिप दी थी उन्होंने, तो I had to do that. अच्छा. तो लेकिन उसके अलावा फिर I resigned and came back to Pookidevs. तो सरकारी नौकरी किधर थी? I'm not at liberty to say that. अच्छा. Okay. Yeah, makes sense. समझ गए. Okay, good. तो उस टाइम पे I think शाहरुख was alone, like शाहरुख ने ना अकेले he did this, so फिर I think started hiring people. Yeah, so like Syha said कि जो 1 साल वो हमने लगाया था without any pay,
क्लासेस ले रहे हैं सुबह, बीच में 2 या 3 घंटे फारिग हुए हैं. So again, through our network, through our like initial people that we knew, we ended up in a co-working space in I-10, KNCT Connect के नाम से space है, and that's where the office is still right now. Yeah, we have an office. अब वहाँ पे एक proper office space है. पहले हम co-working में जाके बैठ जाते थे. तो तब ये होता था, projects थे नहीं कोई, एक का दुक्का छोटे से projects थे, जाके बैठे रहते थे, कंपनी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो लैपटॉप लेके बैठ जाते थे. पहला project was a website from Gujranwala. Yeah, it was a very छोटा सा project. कोई I think ये पंखों वाली website. Yeah, but that और फिर like Kickstart was we ended up landing a very good project जो मतलब हमारे लिए उस time पे it was something जो कि it was associated with Oxford summer program, तो it was like बहुत बड़ी highlight हमारी. और उसके बाद से हमने कहा बस हम बन गए हैं कुछ. That was I think the tipping point where the success started to happen. We're basically हमारे ना blood, sweat and tears सामने आ रहे थे. तो उसके बाद obviously एक thing that I've realized in the short professional career that I've had till now is that network is everything, right? Links is everything. तो वो पहला हमारा project through the network आया, और उसके बाद फिर जो projects उसके बाद आए in the coming few months वो उसी की वजह से आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास word of mouth और हमारे पास एक चीज़ थी दिखाने को कि यार ये एक it was a proper system. तो web portal था, application submit होती थी, payments होती थी, with every payment integrations हुई, सब कुछ हुआ है. और वो that was our showcase item at that time कि यार हमने Oxford Summer Program से affiliated एक program के लिए ये system बनाया हुआ, which is good, which is robust, which has a good user experience, which is serving the customers to their needs and their requirements, and the client was happy with us as well. तो वहाँ से फिर So how did you get that project? Reference, word of mouth again. Word of mouth. So the person again आप बहुत mention कर रहे हैं network, reference, इतनी सारी चीजें. Okay, किसका network बड़ा है और क्या scene है? यार बड़े वाली बात भी नहीं है. It's just knowing that one right person even. It starts with one person. And also मतलब reaching out and मतलब हमें जो बंदा मिलता था ना हम जाके उसके साथ शुरू हो जाते थे. Like we used to attend बहुत ज़्यादा events और हम लोग का पता था यार कोई मिल जाए. टॉक्स पे जा रहे हैं, कोई GDG का I remember shirts पहन के लोग जा रहे होते थे ना, चीते वाले जा रहे होते थे, यहाँ से A-Left वाले जा रहे थे. We used to be like यार इससे मिलना है यार इससे मिलना है. उसी तरह. It's funny that you mentioned that. I remember हमारे startup fest था, startup grind था इस्लामाबाद में, और वहाँ पे all of these big shots were there. बाइकिया का CEO मुनीम है, चीते का CEO, बाकी सारे जितने भी startups हैं, Keep Trucking, उसके अलावा जो आप कहें आतिफ अवान was there. तो सारे ये लोग थे और हम लोग बस कोशिश कर रहे थे यार किसी एक से थोड़ी सी बात हो जाए. थोड़ी सी गपशप. कार्ड्स हमने बनवा लिए थे. कार्ड्स हमने छपवा लिए थे. हमने कहा बस कार्ड किसी तरह बन जाए. लेकिन अब CEO सामने से जा रहे हम पता नहीं, हमें से किसी एक ने कोशिश की, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने हाथ मिलाया, उसने बस चला गया. हमने कहा यार ये कैसे होती है ये चीज़ें. लेकिन कुछ बन गए नेटवर्क्स, मतलब कि कुछ रेफरेंसेस मिल गई, कुछ लोगों से इंट्रैक्शंस हुए. उनको इट्स जस्ट कि यार उन लोगों के दिमाग में भी बैक ऑफ देयर माइंड्स पे पड़ा हुआ होता है कि यार एक ये सर्विसेज कंपनी है इस काम से, एंड द ओनली थिंग दे डू इज tell the other person that is looking for that one thing that they want to get made कि यार ये एक कंपनी है, उससे बात कर लो. वहाँ से आगे फिर बॉल इज इन योर कोर्ट. वर्ड ऑफ माउथ. तो वर्ड ऑफ माउथ और नेटवर्क की गेम सारी से यही है कि आपको सिर्फ मैप पे ले आए वो, कि आपका नाम ले ले कोई सामने उसके कि यार ये है. वंस दैट इज डन, उसके नहीं तो किसी उसके आगे चौथे बंदे को जाके वो बताएगा और वो शायद आ जाए. आई थिंक कोई अगर लाइक बाइंग वो मेंटालिटी ये होती है कि आप अपने किसी जानने वाले या किसी और उनके जानने वाले को अप्रोच करते हो किसी भी चीज़ के लिए. तो आई थिंक या यू आर राइट. और उसके अलावा वर्किंग इन द कोवर्किंग स्पेस, डिड यू लाइक यूटिलाइज इट, इस तरह के नेटवर्क किया एंड उधर? हाँ, दैट्स हाउ वी एक्चुअली केम अप विद द नेम. हमने नाम कोवर्किंग स्पेस में ऐसे ही रखा था. लेकिन वैसे आई थिंक अदर देन द नेटवर्क आई वुड लाइक टू ऐड के इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. लाइक आई रिमेंबर मेरे पास LCC चेयर थी ना घर में, तो आई स्पेंड सो मेनी नाइट्स. लाइक मैं मेरे
ऑफिस यूनिवर्सिटी से ऑफिस गए, द कोवर्किंग स्पेस जो हमारा तब ऑफिस होता था. फिर वापस घर आए और घर आके मैं काम शुरू कर देती थी एंड आई वुड जस्ट पास आउट ऑन माई चेयर. लैपटॉप होता था गोद में और 2 घंटे बाद क्लास होती थी. उठ के फिर यूनिवर्सिटी जाना. एंड आई थिंक दैट वाज ऑल ऑफ अस. लाइक वी वर वर्किंग लाइक क्रेजी. हर चीज़ पे हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट आया, वी वुड डू मल्टीपल आइटरेशंस ऑन हाउ इट कैन बिकम बेटर. कैसे हम ये दूसरों को दिखाएं तो लोग कहें कि यार अच्छा ये डिफरेंट है. तो दैट वाज आई थिंक हार्ड वर्क मैटर्स. वही वाली बात है लाइक ऐसे कि वंस द बॉल, वो आपने नेटवर्क ने वही है कि आपका सिर्फ नाम बताना है, उसके बाद आपके ऊपर है उसको कैप्चर करना क्लाइंट को, उसको फिर डिलीवर करना, वो सारा कुछ आपके ऊपर ऑब्वियसली. और उस वक्त एज अंडरग्रेड्स कुछ कभी कोई काम ऐसे प्रोडक्शन तो कुछ की ही नहीं थी ना. हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी के. दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट वॉल्यूम फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्शन वर्क. और हम लोग को विदाउट एनी एक्सपीरियंस वी जस्ट डाइव्ड इनटू इट कि हाँ बस देखी जाएगी. और जब वो देखना पड़ा तब वही वाली बात है, रातें लगानी पड़ी टू लर्न ऑल ऑफ दिस न्यू स्टफ कि यार ये चीज़ चलो हमने उठा तो ली है लेकिन अब करना कैसे है. क्योंकि ऑब्वियसली but not delivering or compromising on quality, compromising on deadlines, that was not an option for us. We knew that one bad experience and it's all downhill from there. So we just made sure कि यार everything is on point. हम लोग यूनिवर्सिटी में रात को 8 बजे तक कभी बैठ जाते थे क्योंकि आपस में साथ काम करना होता था. और कभी ऑफिस क्योंकि जो थी कोवर्किंग स्पेस वो 6 बजे बंद हो जाती है. तो अब पता है कि यार रात को लेट तक करना है. यूनिवर्सिटी में एक लैब में जाके बैठ के वहीं पे कोई सोया हुआ है, एक 5 में से कोई तो भी किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तीसरा सोच रहा है, बस बैठे हुए गुम हुआ हुआ है. किसी का एक का जो है सेमेस्टर लुढ़क रहा है, वो भी चल रहा होता था साथ साथ. तो बस वही जिस तरह से साया ने कहा, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, a lot of late nights, even all nighters, sleepless nights and वहाँ से it's और अगर आप एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देंगे और अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो ऑब्वियसली वो दोबारा भी आता है. बिल्कुल. तो इस तरह ये हुआ होगा आपके केस में. हाँ, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड, आप ना इस तरीके से अपने आप को मार्केट भी करते हो. तो वंस यू गेट अ क्लाइंट तो आप उसको ना आफ्टर यू आर डन विद द रिक्वायरमेंट्स दे गिव, दिस इज समथिंग जो कि हर जगह होता है और होना भी चाहिए. इसके यू स्टार्ट पिचिंग देम मोर फीचर्स दैट कैन बेनिफिट देम, राइट. सो इट मतलब in the end it's not only getting you money but it's benefiting the client as well. उनके लिए तो उनका business 10-fold हो रहा होता है. Yeah, but then again you're getting some money. Upselling. So उसके अलावा नाम पे आते हैं. You said कि वो co-working space में decide किया था, तो कैसे क्या सीन हुआ था? यार जितनी दफ़ा मैंने ये सवाल सुना है ना कि आपका नाम पूकीडेव्स क्यों है? Pokemon. No, it's not Pokemon. It's funnier. वो हम लोगों ने उधर कोवर्किंग में we once decided कि यार नाम तो रखे ना कोई काम का नाम रखे. कितने टाइम बाद डिसाइड किया था कि नाम? 1 week. अच्छा 1 week. 1 week के अंदर. अच्छा 1 week के बाद 1 week में ही आपको कोवर्किंग स्पेस में जगह मिल गई थी सब कुछ? आफ्टर कोवर्किंग स्पेस के 1 week बाद. अच्छा. हाँ, तो उससे पहले हम लोग पता नहीं क्या कुछ भी नहीं कर रहे थे. उसके बाद उससे पहले मैं लाहौर में था, इंटर्नशिप कर रहा था सिस्टम्स में. ओह नाइस. और बाकी सारे अपना अपना लगे हुए थे. तो ऑनलाइन चल रही थी कोऑर्डिनेशन. फिर जब हम लोग को कोवर्किंग में जगह मिल गई, आई केम बैक फ्रॉम द इंटर्नशिप. फिर हम बैठे, हमने कहा यार अच्छा अब कंपनी रजिस्टर करवानी है. मतलब वी टुक इट सीरियसली फ्रॉम डे 1. हमने कहा वैसे जो है मैस अराउंड नहीं करना, प्रॉपर सीरियसली लेना है इसको, तरीके से करेंगे, रजिस्टर करेंगे कंपनी को, एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे इसको और फिर उसको आगे लेके चलेंगे. अब प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए पहले नाम होना ज़रूरी था. नाम था नहीं. तो हम लोग वहीं पे वाइट बोर्ड था, वहाँ पे कहा यार बस जिसके पास जो आइडिया है ना लिख दो. हम लोगों के आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ सजेशंस. हाँ आई थिंक लेकिन काफ़ी ज़्यादा थी. वी शॉर्टलिस्टेड इट डाउन टू 5. और फिर हमने ना वहाँ पे जितने भी कोवर्किंग में लोग बैठे हुए थे ना, वी टुक अ वोट फ्रॉम एवरीवन. ठीक है वहाँ से. अच्छा. फोन पे काउंटर लगा लिया था. हमने कहा विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट इसमें से कौन सा अच्छा लगा. Let's just tap on that. So Pookidevs के अलावा सारे बहुत सीरियस नाम थे. लाइक हम लोगों ने ना सही सोच के रखे हुए थे. So the co-founder जिसने Pookidevs नाम रखा था, so basically Pookie means round and cuddly. Yeah, it's from Winnie the Pooh. Yeah, so that co-founder is like, मतलब मुझे भी डिज्नी वगैरह बहुत पसंद है and he loves that as well. और उसकी छोटी बहन भी है तो उसका बहुत ना मतलब वो अभी तक देखता था अपनी बहन के साथ.
तो फिर उसने सजेस्ट किया Pookidevs, like devs developer obviously, and we got Pookie from Winnie the Pooh. In some episode Pooh कहते हैं Pookie or something, I don't know. Anyway, so that's the story. Not the story I think you were expecting. Like, not the story anyone expects. Yeah. तो लेकिन we got the most votes on it, so we were like, well, अब तो करना पड़ेगा. We're living in a democracy. Yeah. Nice, funny. और वो दिन और आज के दिन है, किसी को भी कभी ये नाम बताएं तो आगे यही सवाल होते हैं क्या Pookidev? And Pookie, a lot of, even though it's double over and everyone's like Pookidevs. अगर आपका यूनिक नाम हो तो दिमाग में बैठ जाता है. वो हमारे भी यही सोचता है यार गूगल ने भी तो वैसे ही रखा था ना. Okay, so that was another thing. हम लोगों ने जो नाम भी निकाले थे ना, they were all very unique sort of. तो जो यूनिक नाम का सीन ही ये होता है कि it just आपने एक दफ़ा सुन लिया तो आप किसी और से कंपेयर ही नहीं कर सकते हो ना. There is no one else. Pookidevs आपको कहीं नहीं मिलेगा. I think nobody in their right mind would name a company Pookidevs. Lucky for us. Good for us. एक ही Pookidevs है. और अब almost 15 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह. I mean उनके LinkedIn पे लिखा हुआ है works at Pookidevs. Pookidevs Technologies Private Limited. पूरा लिखा होता है. Nice. So अब आते हैं like वापस आपने hiring पे ना, तो अब 15 लोग हैं. लेकिन उससे पहले I want to know कि why didn't you like join full time? So we started off at the end of 6th semester, or I just got done from an internship in systems as an ERP engineer, ERP intern था, और मैं मतलब वापस आके हमने काम शुरू कर दिया. I think within a month हमें वो ऑक्सफोर्ड वाला प्रोजेक्ट मिला, वो हमने ख़त्म किया. उसके बाद हम लोग की एक और वेबसाइट हम बना रहे थे क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट के साथ रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया. उन्होंने कहा यार ये प्रोडक्ट बनाते हैं. अच्छा, प्रोडक्ट बना रहे थे. अब मिड semester break थी. I was in Pindi and I found out that my father had passed away in Multan. I'm so sorry. तो अब obviously वो सारा कुछ मैं मतलब यहाँ पे बैठ के ये कर रहा था, सारा focus was on that. लेकिन उसके बाद फिर moving forward मैं कहा यार चलो इसको अभी तो देखते हैं, बाद की देखी जाएगी जी. तो जब तक ग्रेजुएट नहीं हुए उसी पे काम करते रहे, सारा कुछ किया. लेकिन once I graduated मैं उससे पहले ही काफ़ी डिसाइड कर लिया था कि यार नहीं, I need to work on a proper job. I need to start earning my own money now. जी. तो it wasn't, you can say it wasn't necessarily a necessity, क्योंकि my family was very supportive. I have 3 elder siblings. My oldest is a brother, फिर 2 sisters. उसके अलावा भी the entire family was very supportive. कोई इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात नहीं थी. लेकिन एक बस अंदर से फीलिंग थी कि यार नहीं, आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू स्टार्ट अर्निंग. तो Pookidevs ऑब्वियसली जैसा बताया 1 साल हमने मुफ्त में काम किया था, नो सैलरीज, नो नथिंग, प्रॉफिट, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे थे. जो आ रहा था वो कोवर्किंग में लगा देते थे, वहाँ पे पेमेंट्स कर देते थे, होस्टिंग्स वगैरह लेने में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते थे. तो इस वजह से फिर आई branched out. I started a job at a research lab, Quest Lab. So Quest Lab was associated with my own university, जहाँ से हमने ग्रेजुएट किया फास्ट से. ठीक है. और वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल काम किया. उस 1 साल में I think my average day was 14 to 15 hours of work. और बाकी सोना और आगे पीछे खाना पीना. उसमें यह था कि सुबह मैं काम करता था, जॉब करता था. Quest Lab में was a very low paying job, very low paying. अच्छा. और उसके बाद मैं घर आता था. I was working at a part-time job as well with somebody I knew. उसके साथ मैं कमेटी चौक जाता था पिंडी, वहाँ पे काम करता था. और इस सब के दौरान फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते थे, सारा कुछ. Anything and everything that I could do to just get my hands on some extra cash. उस वक्त बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हुए थे. होता यार नहीं कुछ करना है, पैसे लाने हैं, ये वो. तो वो ड्राइव थी, बस वो करते रहे. एंड एट द सेम टाइम इस सब के दौरान आई वाज गिविंग टाइम टू Pookidevs एज वेल, पार्ट टाइम पे. मतलब हम लोग जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे उस पे आई वुड वर्क ऑन द टेक्निकल साइड्स. आई स्टार्टेड ऑफ, जैसे साइन मेंशन किया, स्टार्टेड ऑफ एज एन ऑप्स टाइप रोल. लेकिन उस सब में विद द 5 co-founders among us सारा टेक्निकल काम भी खुद ही करना होता था. तो डेवलपमेंट भी चल रही होती थी. And I very quickly realized कि यार नहीं, ops is not my ball game. ठीक है.
maybe I can do it to a good high level if I pursue it. Like, it was not something that I enjoyed. I realized very quickly I enjoy development. I enjoy engineering. तो वो फिर engineering की तरफ ही रहा. Pookidevs में engineering करते रहे, different चीज़ों के projects पे काम किया. Fast forward exactly a year after that, I switched my job and moved to Rain. So Rain was, I think, a year हुआ होगा उसको, almost a year हुआ था जब उसको found हुए हुए. And Rain is actually you can say consultancy, digitizing sort of organization. You know, we're trying to empower the community of Pakistan and the population of Pakistan through digitization. And उस time पे it was very initial. बहुत छोटी सी team थी. I was the second engineer there. Oh, nice. It was a very interesting, bold move. From an external perspective, you can say. I was very committed to it. I was very confident about it. Lekin everybody around me was like, क्या कर रहे हो तुम किसी बड़ी कंपनी में जाओ, Finity में जाओ, Systems में जाओ, Aurora में जाओ, इतनी ज़्यादा कंपनीज, तुम वो सारी छोड़ के यहाँ क्या करने चाह रहे हो. लेकिन so Rain was like, their mission and their drive was really amazing. And so they were always trying to bring in people with very specific skill sets, serving to different segments, different areas, and with a very global perspective as well. So makes sense. So maine kaha yaar nahi, this is something that interests me. It was along the lines of the same environment that we had in our startup. Uska thoda sa feel aa rahi thi कि यार this, क्योंकि feel भी वाली बात नहीं है. In बहुत initial phase था, like नहीं, I want to dive deep into it. And alhamdulillah, I've been with Rain for a year and a half now. Nice. And the team has grown tenfold. Nice. And we're growing every day right now as well. So anybody watching, we're always hiring. We're always looking for like top I guys. said. I get people it with the right skill कि एक sets. ऐसी जगह पे जाना जो like नज़र आ रहा हो कि grow करेगी और global level पे. तो और उससे फिर obviously आप अपने startup को भी वो उसमें support कर सकते हैं और आप like connection बना रहे हैं और skills सीख रहे हैं नई जो कि आप इस अभी level पे शायद नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे. Yeah. लेकिन once I moved to Rain, लेकिन फिर I shut everything else down. I was like, now I'm going to focus full time on this. So once I moved there, I talked to the co-founders, Pookidevs के भी कि यार I won't be working part time भी इस पे, quit my second job, सारा कुछ छोड़ के, क्योंकि Rain required focus, and because it was a startup, it still is kind of a startup as well. So it required the same energy, the same, you can say, determination and effort that maybe Pookidevs required two years ago जब start off हो रहा था. So and I was very committed to it. I have been doing that, and I hope to see the company grow as well. So you worked at Systems, internship or Rain Group पे? Rain Group, sorry. It's just Rain now. Rain, अच्छा Rain. So like उसमें क्या difference था? Systems एक बहुत बड़ी like company है और इसमें Rain अभी नई आई थी, तो इसमें like how do you like differentiate? Yes, Systems में जाके I realized Systems का experience with Pookidevs का experience एक साल का उसमें comparison नहीं है, क्योंकि Systems is a proper established organization. वहाँ पे आपकी layers and layers of hierarchy है, जहाँ पे proper structure है, तरीके से काम हो रहा है. तो any place like that, even if काम ज़्यादा होगा, काम तो obviously होगा, हर जगह होगा, काम ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे ना आप एक सेफ्टी नेट के अंदर रह के एक हद तक काम कर रहे होते हो. Like you have this entire team right next to you, above you, maybe along the lines under you as well, who you can rely on, who are going to कि आपके वहाँ पे you're just another nut in the entire machine, right? You're easily replaceable as well. तो वहाँ पे you are making an impact, but not on a great level. जहाँ पर in comparison to a startup, at Rain, both initial phases था, or even now, you feel empowered. Like you feel heard. You feel like you are making a difference. Something that I don't think from the feedback and from the thing that I have heard from my peers
who are working in big organizations, I don't feel that sense of fulfillment in their work. Nothing against them. वो वाली कोई बात नहीं. There's just a personal preference कि I want to, you know, always be on the run. कि बस करते रहो कुछ exciting करते रहो, something that's making an impact, something that's you know exciting और हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा हो. तो personal preference you can say थी, and it's just the entire like thrill of it excited me, and it all attracted me to it as well. Nice. Yeah. So can you like share some projects if you can? So I can talk about one product. Yeah. So one product that we've pushed out from Rain is very interesting and very close to my heart and the team that has built it as well. The entire team. That's called Deen. So Deen is an app on Android and iOS. So it's a Quran reading app. Uspe the focus has been to just make knowledge, Islamic knowledge, easy to consume. Quran आप पढ़ रहे हो तो you're having a good experience reading that. और उसके अलावा, so the most interesting feature that has been integrated from 2 other products that fall under the same umbrella are indexed Quranic verses and indexed hadith. So by indexed I mean topic wise indexed किया हुआ है उसको कि अगर आप आजकल आप गूगल पे चले जाओ कहीं पे या किसी मुफ्ती के पास जाओगे, अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में देखना है कि यार इस्लाम इस पे क्या बात करता है जी, तो our entire team's like aim was to take that entire interpretation layer out of it, and जो आपकी कुरान में टेक्स्ट है what index it based on that, what that text is talking about without any interpretation. तो अगर आपने देखना कि यार शादी के बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस क्या कहती है शादी के बारे में, शादी में डाउरी का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम में, तो वो सारी चीज़ें आपको इंडेक्स वहाँ पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगी. और ऐप में ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फीचर्स के यू कैन टेक नोट्स ऑन योर कुरान. सो वन थिंग दैट इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग इस हिसाब से कि आप जब कुरान किताब पे पढ़ रहे होगे तो आपको लिखते हुए थोड़ा सा होता है कि यार नहीं holy book hai, you can't write on it. So making it digital makes that thing easier as well. You can favorite a verse and Allah's names उसमें एक बड़ी it's a very beautiful feature कि हर अल्लाह के जो 99 names हैं हर नाम के against एक उसकी पूरी explanation है, उसकी हदीस है जहाँ पे mention हुआ है, उसकी Quranic verse है जहाँ पे mention हुआ है, और अभी going forward there are a lot of different features that are being added to it as well. So, and we've worked very hard on it. The entire team has worked very, very hard on it, and it's very close to our hearts. Yeah. And alhamdulillah, growing by the day. So hopefully, the aim is to make it reach all of the Muslims around the world. So that is really like amazing, and it will help so many people. क्योंकि I think अगर sect वाली बात करें तो वो एक यही मसला है ना कि like people can't agree on the text. तो दिस विल हेल्प अ लॉट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन दूर करने में. वही ना, आप वो सेक्ट निकाल दो बीच में से, आप यू जस्ट टेक आउट एवरी लेयर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड लुक एट द कुरान एज इट इज, लुक एट व्हाट्स रिटन इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, लुक एट द हदीस, व्हाट द हदीस सेज, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ तो वही टेक्स्ट है, राइट? आपकी वो हदीस है, उसके अलावा ठीक है उलमा हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, उसकी आपकी तफसीर वगैरह है, लेकिन इट इज़ ऑल वेरी सब्जेक्टिव टू दैट पर्सनस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग. जितना मर्जी आई डोंट वांट टू लाइक यू नो पॉइंट समथिंग, से समथिंग दैट ऑफेंड्स पीपल, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ इट ऑल कि इट इज़ सब्जेक्टिव. तो टेक आउट दैट सब्जेक्टिवनेस, आप उसको जस्ट फोकस ऑन द टेक्स्ट, व्हाट दैट इज, एंड इट्स ओपन टू योर ओन इंटरप्रिटेशन देन. Nice. Like really love your story, and I like see how you are like very passionate about it. Oh, right. So I can talk about this for days. My friends make fun of me. मैंने भी एक दोस्त को बताया कि यार हाँ I'm going on this podcast I think, कहते यार तुम तो बोलते रहोगे यार, चुप कौन कराएगा? So I can talk about this for as many hours as you want. I think I'll hand it over back to you and ये अगला सवाल पूछ लो. Sure. So like अब आते हैं वापस Pookidevs पे. So अब हम वापस स्टोरी पे आते हैं जहाँ पे आप लोग 5 co-founders हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, आप ग्रोथ वाली स्टेज है. ये मैं
3 सबक कह चुका हूँ लेकिन हम वो आगे नहीं बढ़ पा रहे. सो आप ग्रोथ कैसे शुरू हुई, लाइक हायरिंग कैसे शुरू की? पहले तो आप होते ना 5 लोग हैं, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है. अगर कोई आ रहा है तो आप उनको पे भी करना है, आपने उनके सारे मसले देखने हैं, वो काम कर रहे नहीं कर रहे, लाइक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है. और एक आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है किसी भी कंपनी में, हायरिंग. So if you have done a wrong hire या good hire, it can make a huge difference. So how did you like? खास करके startups में तो obviously it's such a big risk. Yeah. लेकिन I think the main thing was कि जैसे जैसे we started getting projects, right? अब half of the co-founders were like leaving, तो obviously manpower तो कम हो गई थी ना. जी. तो at one point it was down to just one person. It was just Shahrukh at one point, right? ठीक. So with projects obviously came revenue. But that revenue was to come only if you had the right person working on that project, right? एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता. जी. So that's how basically hiring started. Like we started hiring interns and then उसके बाद full time employees पे हम आए के मतलब obviously with interns it's not as hard, you know, इतनी बड़ी responsibility नहीं होती जितनी full time employees की होती है, right? जी. So that's how we started. हम लोगों ने पहले interns आए किए, project based interns आए, फिर उसके बाद some of those interns became full-time employees. Nice. Some of them are with us. अभी को साल से ऊपर 2 साल almost हो चुके हैं कुछ लोगों को, like they're still with us. तो और आप लोग लाइक फास्ट की मार्केट को ही टारगेट करते हैं? नहीं funny thing is कि I think we just have 2 people from Fast. Like other than obviously the co-founders, there's just 2 people from Fast. Nice. So मतलब I think the aim basically why we started this, like the main idea that Shahrukh and I had was, you know, to help people grow, yeah. to make them, you know, अपने अंदर से वो leaders बने, अपने own पे वो leaders बने, कल को खुद कुछ बन सकें, right? Yeah. So और उस टाइम पे जब कोविड का टाइम था ना, तो उस वक्त जॉबलेसनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी. like when I asked my friends in other universities, they were like नई नौकरियाँ मिल रही, and when I looked around Fast के लोगों में ऐसे नौकरियाँ मिल रही थी सबको. I was like यार दिस इज समथिंग जो कि नहीं होनी चाहिए. लाइक कंपनीज शुड रियलाइज के स्किल टैलेंट ये यूनिवर्सिटी वाइज नहीं होता, राइट? तो आई थिंक दैट वाज एक हमारा जो मेन आइडिया था, यू नो, टू हेल्प पीपल बिकॉज नोबडी हेल्प्ड अस व्हेन वी वांटेड इट एंड वी वांटेड लाइक खास करके व्हेन वी स्टार्टेड पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ अस. हम आई रिमेंबर वॉकिंग इन कॉरिडोर्स एंड पीपल वुड बी लाफिंग, हा 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 प्रोजेक्ट आया सब Pookidev चला रहे हो, लाइक दैट. इवन टीचर्स यूज्ड टू बी लाइक यार क्या यार जीपीए खराब करोगे, फेल होगे, क्या करो, टाइम वेस्ट करो. तो nobody helped us out, right? तो अभी भी हम लोगों का इधर फोकस इज कि एक तो जब हम हायरिंग करते हैं ना, तो हम लोगों का मेन आइडिया इज कि बंदे का काम कैसा है. ठीक है. वी डोंट केयर कि वो बंदा है या बंदी है, वी डोंट केयर उसका जीपीए क्या है, वी डोंट केयर उसकी यूनिवर्सिटी का कुछ भी नहीं है. बस उसको काम आता है, यू आर हायर्ड. एंड अगर नहीं भी आता ना, we'll help you. This is what we do. Like we've had मतलब जो भी हमारे साथ एम्प्लॉइज़ हैं ना, उनको हम ट्रेनिंग्स देते हैं. लाइक उनको सर्टिफिकेशंस करवाते हैं. एंड नॉट जस्ट सर्टिफिकेशंस, देयर इज अदर थिंग्स लाइक उनको प्रोजेक्ट्स देंगे कि ओनरशिप लो. दैट्स लाइक उनके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटीज़ डालेंगे, ओनरशिप्स देंगे उनको अपने काम की. मतलब लाइक वो इंडिपेंडेंटली अपने काम को ना पूरा 100% देना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक हम लोग का जो एम था, उसी हिसाब से फिर हमने हायरिंग शुरू की. हायरिंग में हम लोगों के अंदर यही चीज़ें देखते हैं, इफ़ दे वांट टू, यू नो, if they can push themselves, if they're willing to learn, that's the only thing that matters. तो once अगर बंदा falls on that point, तो you're hired. And we love to work with such people. हमें मज़ा आता है लोगों को सिखाने में और उनके साथ खुद भी सीखने में, because हम लोग भी कोई ज़ाहिर है we're not experts here. Like हम लोगों ने कोई दुनिया नहीं देख ली पूरी, just 20s में अभी भी हम भी. तो दूसरों से भी काफ़ी सीखने को कुछ मिलता है, हम भी सिखाते हैं, तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल थिंग. तो दैट्स हाउ आई थिंक वी ग्रू. एंड फोकस हमेशा ग्रोथ पे था, हेल्पिंग पे था, लोगों को मतलब यू नो पोटेंशियल रियलाइज, बिकॉज आई रियलाइज कि एवरीवन's टैलेंटेड. ऐसा नहीं होता कि किसी का अगर जीपीए नहीं आ रहा तो उसको कुछ नहीं आता. पीपल आर सो टैलेंटेड. जस्ट बिकॉज किसी से चीज़ें याद नहीं होती हैं या वो देयर सो मेनी थिंग्स लाइक मतलब मेरे साथ भी होता था कि मैं पेपर में ब्लैंक भी हो जाती थी नर्वसनेस की वजह से, राइट? इफ़ समबडी गोज थ्रू दैट, उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता या वो टैलेंटेड नहीं है. लाइक
मतलब I look at my team right now and I'm just like यार wow amazing people मतलब अल्हम्दुलिल्लाह amazing team geniuses हैं सारे. तो मतलब क्या हो गया कि GPA नहीं आया किसी का थोड़ा सा कम हो गया लाइक ठीक है नॉट लाइक कोई इतना बैड सीन नहीं होता लोगों के साथ बेचारे के बहुत ही बुरे हो लेकिन मतलब अगर नहीं आया 3 यार 2 पे हो तो कुछ नहीं होता. So like आप लोगों का GPA इफेक्ट हुआ था while you were working? नहीं आपका तो नहीं हुआ ये तो मैं पता है. इंटरेस्टिंगली मेरा सबसे हाईएस्ट GPA ही आखिरी 2 सेमेस्टर्स में आया था जब मैं साथ स्टार्टअप भी चला रहा था. आई थिंक वो सिनर्जी वाला एलिमेंट आ जाता है क्योंकि आप एक इतने फ्लो में होते हो काम के तो वो पढ़ाई फिर लगती नहीं है ना वो मौका ही नहीं मिल रहा होता और वो आपका दिल भी नहीं कर रहा होता कि यार चलो मैं थोड़ी वेलियाँ मार लेता हूँ. मैं मतलब कहते हैं यार चलो ये कर रहा हूँ ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ अच्छा चलो ये प्रोजेक्ट है इस पर थोड़ा टाइम दे देता हूँ ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये भी कर लेते हैं. मगर मेरा पूरे यूनिवर्सिटी जितनी वैसे 4 साल में 5-6 सेमेस्टर्स मेरा 3 से ऊपर GPA नहीं आया. अच्छा मेरा मैक्सिमम गया था 2.8 तक. अच्छा और आखिरी 2 सेमेस्टर्स में 3.3 और फिर आखिरी में कोविड था चलो वो तो दैट डज नॉट काउंट 3.6 या 3.7 तक चला गया. लेकिन दैट वाज माय हाईएस्ट स्कोरिंग GPA और आई थिंक दैट credit goes to that startup to Pookidevs as well. जिस तरह से आपने बात की कि it's the synergy of it, it's the excitement of it all कि आप जब एक चीज़ करना शुरू कर देते हो ना सही तरीके से तो फिर आप बाकी सारों चीज़ों पे भी सही तरीके से करना शुरू कर देते हो. So like I personally experienced this as well कि जब मैं first ईयर में था तो मैं कुछ भी नहीं करता था. मैंने कहा पढ़ना है बस और कुछ भी नहीं करना. मैं जाता था यूनिवर्सिटी और घर आ जाता था और एक सोसाइटी में था दैट्स इट. लेकिन फिर उसके बाद समर वेकेशन आई एंड आई स्टार्टेड एन इंटर्नशिप. तो वो इंटर्नशिप फेलोशिप में बदल गई लाइक वो कंटिन्यू हो गई. तो वो थिंक टैंक में थी यूथ इकोनॉमिक फोरम में. तो आई स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम और वो ऑफिस बेस्ड थी तो मैं क्लास लेता था उधर जाता था. मैंने कहा इस सेमेस्टर तो आएगा ही नहीं GPA ना. लेकिन उसी सेमेस्टर फिर लाइक उस सेमेस्टर से बढ़ना शुरू हो गया बिकॉज आई थिंक वो एक फ्लो होता है और एक लाइक सिनर्जी वाला एलिमेंट होता है. आई थिंक उससे ना आपकी एक inadvertently आप हर चीज़ में consistent होना शुरू हो जाते हो. एक फोकस बन जाता है जी. And I think the only key to success to growth is consistency. You just need to be consistent in whatever you're doing. चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो कोई और चीज़ है काम है sports है anything. Consistency matters. लेकिन एक चीज़ है जो बहुत मुश्किल है वो है फास्ट. तो आप लोग क्योंकि मेरे दोस्तों ने तो बड़ा लाइक स्ट्रगल किया है और मेक सेंस क्योंकि आप इतना ज़्यादा क्यों लाइक बच्चों पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं. एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है लाइक आपको पसंद है फास्ट या नहीं है एंड हाउ टू लाइक सर्वाइव फास्ट. ये मैं हर फास्ट इन से पूछता हूँ. Do you want to go first? No, you can go first. Yeah, I think the entire grind of it is the reason that all of these great engineers are being pushed out of it. Not just engineers, even the people from your school of business जो है वहाँ पे. All of those people are very competent. So the one thing that sets people from fast apart from the other is that you throw them into any kind of thing, any kind of problem, they will find a way out of it. So that entire like pressure, that entire वो element of रगड़ा आप जो कह लो 4 साल का जो गुजारा है ना that has taught those fastians, that has taught us as well कि यार it does not matter what the problem is. If you have a problem you need to solve it. जैसे तैसे मर्जी करनी है आपने. तो वो वाली चीज़ तो personally I loved that entire thing. मतलब I am very grateful for being privileged enough to have studied there and graduated on time as well. That's a big privilege. That's a big privilege as well. So and I thoroughly enjoyed it. मैंने ये भी नहीं किया मैंने enjoy नहीं किया अपना university experience में. Ops वगैरह अगर बात करें तो that was because of NASCON का experience जो आपका event होता है. तो आई थिंक सुल्तान जो बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी मुलाकात और इंटरेक्शन उसी दौरान हुई. तो ड्यूरिंग माई एंटायर यूनिवर्सिटी आई वुडंट से माई सोशल नेटवर्क वाज वेरी बिग लेकिन इट वाज एवरेज. मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं है और पार्टी बहुत की है. हम लोग आधी रात को बैठे हुए हैं चाय पी रहे हैं. किसी दिन
आधी रात 1 बजे दिल किया मरी जाना है यार, चलो मरी चलते हैं, मरी चले गए। अगले दिन सुबह जो है 8 बजे क्लास भी लिया, फिर वापस आके, तो ये सारा कुछ 7 साल चलता रह रहा था। एंड आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक फास्ट, जहाँ पे आपको पता है कि रगड़ा तो आपका लगना ही है, तो साथ थोड़ा आप इंजॉय कर लो। एंड जहाँ तक बात GPA की रही, बहुत लोग कहते हैं GPA डज नॉट मैटर, एंड आई डू बिलीव दैट एज वेल। मेरा अपना GPA बहुत गंदा था, लेकिन GPA डज इन फैक्ट मैटर फॉर योर फर्स्ट जॉब। अच्छा, आई विल डेफिनेटली से कि GPA डज मैटर फॉर योर फर्स्ट जॉब, क्योंकि उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है, आपने काम क्या किया। उसके बाद आपसे किसी ने नहीं पूछना यार तुम्हारा GPA क्या था यूनिवर्सिटी में, लेकिन फर्स्ट जॉब वाले पूछते हैं। वो कैप लगा देते हैं, 3 से ऊपर हमने देना है सिर्फ। तो मैं आधी कंपनीज में जो है ना, क्योंकि मेरा CGPA 3 से नीचे था, तो आई ग्रेजुएट विद 2.8 CGPA। तो कुछ कंपनीज तो मुझे पता है कि मैं इसी वजह से कॉल नहीं आई थी कि भाई 3 से नीचे साइड पे करो इसको। लेकिन आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल, आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड राइट नाउ एज वेल। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक हाउ डज इट फील लाइक टू बी अ चौके वाला स्टूडेंट? नहीं, मेरा वो नहीं था, लेकिन यार आई थिंक एक और मेरे लाइक सवाल है कि स्कॉलरशिप का आप बताएंगे? It was a fellowship. It was a government. अच्छा, हाँ, फिर skip कर देते। समझ गया। अच्छा। Yeah, so it was a good thing at that time. लेकिन like bragging rights are लेकिन पढ़ी हूँ मैं। anyway, yeah, it was just a lot of sleepless nights, a lot of pressure. और बिकॉज मैंने ना CS तो करना ही नहीं था, मैंने ये काम नहीं करना था मैंने, बट लाइक आई एक्चुअली हैड टू गो टू लाहौर। अच्छा। तो वहाँ पे लाइक आई हैड टू स्टडी फैशन डिज़ाइनिंग, राइट, एंड आई गॉट इनटू माय ड्रीम कॉलेज एज वेल, बट लाइक माय पेरेंट्स weren't ready to send me to लाहौर, राइट। तो और बाबा को फास्ट बहुत पसंद आ रही थी, एंड लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, राइट, सो it was like medical मैंने नहीं करना था, नहीं किया था, तो my father was like get a solid degree and CS is the second best option, right? So then the first best कौन? Medical, obviously. For some people, perspective की बात। I mean doctors से तो आप ही expect कर सकते हैं। अच्छा। तो खैर anyway, तो ये सीन था, लेकिन I struggled काफ़ी ज़्यादा honestly, because it wasn't just the study वाला part. Like मुझे पढ़ाई से कोई मसला नहीं, मुझे actually पढ़ने में मज़ा आता है। Very strange, but मुझे exams देने का बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत मज़ा आता है exam देने का, लेकिन yeah, I'm actually very competitive, तो उसमें वो वाला element आ जाता है, और जैसे ही exams होते थे मैं अगले दिन पहुँच जाती थी, सर marks लगे। खैर anyway, so पढ़ाई wasn't the issue, it was just कि मुझे थोड़ा सा बीच में, खास करके सेकंड सेमेस्टर में, because that's when normally art colleges start, जनवरी में स्टार्ट होते हैं, राइट, और फास्ट स्टार्ट्स अगस्त में, तो फर्स्ट सेमेस्टर गुजर गया था, GPA फिट आ गया था। किसी को लाइक ऑप्शन नहीं देता, कहते बस फीस जमा करो, एडमिशन हो गया, 2 दिन के अंदर सबसे फीस जमा करो, उसके हफ्ते बाद क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये सीन था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आई थिंक आई हैड वो ब्रेक डाउन थोड़ा सा, बिकॉज आई वाज लाइक यार मैंने नहीं करना है, और थोड़ा सा वो इमोशनल टाइम था। लेकिन आई थिंक मेरा वर्स्ट GPA भी सेकेंड सेमेस्टर में आया था। अच्छा, 3 से फिर भी ऊपर था। 3 से फिर भी पीछे सुल्तान की वैसे नहीं वर्स्ट खैर एनीवे, लेकिन देन अगेन ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरा बैक ऑफ द माइंड इमोशनल वो भी रहता था, और मैं थोड़ा सा अपना आर्ट का आउटलेट भी रखती थी। तो डूइंग दैट विद, मतलब मैं रात को लाइक आई मेंशन कि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी वो भी शुरू की हुई थी, वो भी करती थी मैं फोटोग्राफी भी करती थी, एंड आई वाज इनटू दिस इवेंट्स वगैरह भी। तो मैं मतलब GIK के साथ मैंने काफ़ी उनके इवेंट्स के अंदर वो जो एम्बेसडरशिप होती है वो की थी। आई वर्क विद अ फिल्म मेकिंग कंपनी एज वेल। तो मैं अपना आर्ट से आउटलेट भी रखती थी। तो दैट विद यूनिवर्सिटी इन द मॉर्निंग एंड दैट एट नाइट इट वाज वेरी हार्ड। फिर वो मैंने क्विट कर दिया। I was like, I can't do this. लेकिन वो that was the time जब हमने फिर Pookidev शुरू कर दी थी जी। तो it was very hard, but I think हो गया था, ठीक है।
So like I have met so many people जो like वो artist हैं लेकिन वो like बिल्कुल different profession हैं. So वैसे like art side किस तरह help करती है? आप मैंने like LinkedIn में देखा था UI UX डिजाइनिंग वगैरह. Yeah, that's a certification. वो तो एक is another element. Like मुझे ना हर वक्त चुल होती है कि आप कुछ नया सीख लो. तो like that's that. आप अभी क्या handle करती हैं Pookidevs में? Pookidevs में अच्छा so that's a lot of stuff. Like I'm doing back-end development भी और अब मैंने front-end development भी शुरू कर दिया. So that's software development as well as like मैं website development भी कर लेती हूँ. As well as managing our websites का vertical. As well as managing the products. तो as well as चलता रहता है. Working in a startup. तो as well as like I am मतलब मैं top roles पे भी हूँ मैं bottom roles में भी हूँ वो ये scene है. तो there's that अच्छा so photography वाला experience कैसा था? यार it was वो मैंने ना अपने own पे की थी like मैंने पहले A levels में I think तब MUNs का बहुत ज़्यादा अभी भी I think होगा A level community में. आपने A levels कहाँ से किया? बेरिया से it's a Navy का college. मैं बीकन से किया. Like मैं Montessori से A levels में उसी स्कूल में पढ़ी हूँ. No, that's not nice. And that wasn't my. Don't poke that. Yeah, not my best years. Interesting. Yeah, तो तब वो जो naval headquarters yeah, complex में yeah. तो my dad has worked in the force now. तो वो तब से फिर खैर anyway तो photography ये थी मैं MUN मैंने 1-2 कवर की थी और वैसे ही थोड़ी सी और वो भी तब I did not have a DSLR मैंने किसी दोस्त का राना का DSLR उठाया और से photography करती थी. I used to cover events in the school as well, the college as well. जो हम लोग की जो भी events होते थे I used to take pictures और मैं उनको भी cover करती थी. तो that was like वो वाला experience. But उसके अलावा जो मेरा photography था वो I actually like doing art photography and portrait photography. तो वो मैं सिर्फ अपने खींचती थी. वो पे मेरे blog पे जाते थे. तो I used to blog अब तक active है या? नहीं मैंने बंद कर दिया था. CTRL delete? उसकी भी एक स्टोरी है लाइक वो लाइक आई टोल्ड यू कि जब जो चीज़ मैं कर रही थी वो नहीं करता था कोई भी एंड देन एक टाइम आया था व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट. तो लॉट ऑफ पीपल उस टाइम पे ना वो एड्स वगैरह जो चलते थे ना तो दैट वाज वो वाली थिंग जो न्यू इंस्टाग्राम एड्स आए थे आई थिंक. तो और मेरे पास मैं नहीं कर सकती थी. आई डिड नॉट हैव द मनी टू डू दैट राइट. लाइक मुझे लगता था कि क्या पैसे भी क्या करूँ एड्स में पैसे लगा के. लेकिन एनीवे सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कॉपीइंग माय वर्क एंड आई सॉ सो मेनी पीपल कॉपीइंग इट एंड सो मेनी पीपल गेटिंग व्यूज एंड यू नो बिजनेस फॉर इट. तो मैं थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो गया था मुझे. फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने दोबारा करनी लेकिन या तो उधर मैंने अपने ना सारे शौक पूरे किए थे. मैंने अपना SFX को शौक पूरा किया था. मैंने अपना पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का एंड समवन आई थिंक मॉडलिंग का शौक भी पूरा कर दिया था बीच में. तो या अच्छा अब अच्छा happens लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब लाइफ वाले पार्ट पे आ जाएं या कुछ रहता है फास्ट ब्रेन. I think I'd like to give a piece of advice for anybody graduating as an engineer, as a computer scientist. वो मैं पूछ लेता हूँ. या वो लाइक बीच में से या तो इसी तरह लगा दूँ या तो फिर पूछूँ फिर लगाऊँ क्योंकि it won't make sense. मैं पूछ लेता हूँ. सवाल क्या? Any advice for graduating engineers? अब जवाब भी दे. Yeah. So when I joined Rain, I got the opportunity to interview a lot of people. जी. Hiring करने का मौका मिला to be on the front lines for that. तो उसके दौरान I realized very quickly कि यार मतलब जहाँ पर obviously very different mindsets you can say when compared to Pookidevs and Syha and everybody जो ये लोग करना चाह रहे थे कि you know uplift people and at the same time teach them और उनसे मतलब उनको सिखाएं भी सारा कुछ करें. We are aiming to do that as well obviously. लेकिन एक जो हम लोग को struggle feel हुआ कि
engineers are all over the place. हमारे especially fresh and graduates and even engineers with a few years of experience, मतलब कि आपके पास you don't know what you want to do, right? कि उनको बस ये पता है कि मैंने बस जाके नौकरी करनी है जी. तो बस एक कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, उस पर पकड़ लिया कि यार मैंने इस चीज़ पे नौकरी करनी है. एज अ फ्रेश ग्रेजुएट कह रहे हैं हम जी भी रिएक्ट के डेवलपर हैं फॉर एग्जांपल, तो लाइक एक्सप्लोर नहीं कर रहे. एंड आई थिंक वेरी अर्ली इन टू योर करियर यू आर नॉट एट लिबर्टी टू से कि यार मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ या इस चीज़ पे ही रह के मैंने काम करना है. ठीक है. You should be open to explore a lot of different things, and I think you should explore a lot of different things. It's not something that is a requirement, लेकिन it's something that will help you grow as an engineer, help you become a better engineer. जी. यहाँ पे हम लोग एक चीज़ होती है कि यार जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नथिंग, राइट? लेकिन जैक ऑफ ऑल क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर. वही जो भी होता है. तो so I believe in jack of all and master of one. कि आप एक्सप्लोर करो, breadth बनाओ, पहले breadth बनाओ, then go deep, then become a master of one thing. क्योंकि उससे क्या होगा, you'll find that when you go across, when you know start exploring across breadth में आप जाओगे, you'll explore a lot of different things and you'll find that one thing that excites you the most. Or as an engineer I think that's very important to know that कि यार ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत एक्साइट करती है और मैंने इस चीज़ की डेप्थ नॉलेज लेनी है. क्योंकि जब आपके पास वो चीज़ होगी ना, जब उसकी इन डेप्थ में आप जाओगे, तो then you're going to explore everything in a very different manner from something in comparison to something that you are being forced into या you thought कि you like और इस वजह से तुम उधर जा रहे हो. And once you have that depth of knowledge, तब आप you're in a position to say okay, this is my expertise, and that depth of knowledge does not come before I think 5 to 6 years of working in that technology. I think that is very necessary for young engineers to understand, fresh graduates especially, कि यार आपने you need to go across breadth पे जाओ पहले, realize what you're good at, realize what excites you, and then go deep into something. क्योंकि right now what I feel like is कि हम लोग एक चीज़ पे क्योंकि फोकस कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी अपनी एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं. जब आप ब्रेड्थ पे जाओगे तो आप फिर डोमेन नॉलेज के बजाय आप ऑन अ हायर लेवल प्रॉब्लम को देखोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश. और इसमें लाइक वो लीडरशिप वाली भी बात आ जाती है कि इट विल हेल्प यू इन द एग्जैक्टली इन द लॉन्ग रन. जब आपने पूरा प्रोजेक्ट लीड करनी है या प्रोजेक्ट लीड करना है, हैविंग दैट ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज विल हेल्प यू इन लीडिंग दैट एंटायर टीम अंडर यू. जो आपने अगर बैकएंड का भी काम कर रहा है, आपको अगर उसकी थोड़ी सी भी डोमेन नॉलेज होगी तो यू कैन एटलीस्ट सिट विद देम ऑन देयर लेवल एंड talk to them about technology, talk to them about even अगर आर्किटेक्चर लेवल पे भी कर लो, आपको कम से कम अंडरस्टैंड कर सकोगे, आपके पास वो नॉलेज होगी, आपके पास वो प्रॉपर एक्सपर्टीज़, तो आप डीप एक्सपर्टीज़ नहीं होगी लेकिन आपके पास पता होगा कि यार आप क्या कर रहे हो. तो आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी एंड दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू फोकस ऑन. और इसमें एक और बात है कि डू यू थिंक कि कोविड अफेक्टेड द एजुकेशन इन द सेंस के लोग लाइक जैसे इंजीनियर्स जैसे आ रहे हैं या कोई भी सेक्टर का है, तो वो इफेक्ट हुए होंगे कोविड के ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से? या आई डोंट थिंक सो, क्योंकि engineering, especially computer science, computer engineering, software engineering is something that you learn on your own to an extent. Self learning बहुत ज़्यादा है. आपके पास जो इवन आप यूनिवर्सिटी में भी जाके जब पढ़ रहे हो आपको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आपकी जो लर्निंग है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू. आपकी अपनी पेस पे आपके अपने कॉन्सेप्ट्स आप कितने अच्छे तरीके से ग्रास्प कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो. मतलब यार कोविड से पहले भी आपके पास कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन. नहीं, आई एम टॉकिंग इन द सेंस के जैसे लोगों को मार्क्स इजीली मिले, जीपीए अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली वो स्किल्स नहीं होंगी क्योंकि आई थिंक ऑनलाइन एग्जाम्स थे, तो वी ऑल नो कि किस तरह ऑनलाइन एग्जाम्स वो तो बड़े अच्छे तरीके से होते थे. आई थिंक इट वाज स्टिल द सेम. पहले भी ऐसे इवन इन लाइक फिजिकल एजुकेशन भी जब तक सही तरीके से चल रही थी, it was very once you crack the code, ना पेपर सॉल्व करना, ग्रेड्स लेना, जीपीए लेना is easy without even having the skills as well.
तो आई थिंक उस हिसाब से देयर वाज़न्ट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि जो करने वाले थे स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उनने वो किया है कोविड के दौरान भी और उससे पहले भी वो कर रहे थे, तो उसकी क्वालिटी नहीं उस तरीके से अफेक्ट हुई इन माई ओपिनियन. आई कुड बी रॉन्ग, या मे बी नहीं, मे बी नॉट. सो दो केसेस हैं कि एक तो लाइक ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, ठीक है, और जॉब्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, और एक फास्ट में जैसे पढ़ रहे हैं या किसी भी CS में या इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ रहे हैं. तो आप लोगों की उनको क्या एडवाइस है कि वो एक तो पढ़ें कैसे, किस तरह लाइक स्किल्स गैदर करें, या GPA अच्छा लेना पड़ता है कभी कभी तो वो किस तरह लें, और दूसरा कि अब वो जॉब मार्केट में आ रहे हैं तो किस अप्रोच से हैं. एक तो हमने बात कर लिया, और किस तरह उनको जॉब्स मिल सकती हैं, और या गो अहेड. आई थिंक पढ़ाई पे तो साया बेहतर बता सकते हैं. यार ऑनेस्टली अच्छा, वैसे आई वाज़न्ट अ पढ़ाकू सॉर्ट ऑफ ईदर. मैंने बहुत पार्टी की यूनिवर्सिटी में, फुल एंजॉय किया. तो लाइक आई वाज पार्ट ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज़ एंड स्टफ. एट वन पॉइंट आई वाज अ सेलिंग पॉइंट फॉर दिस सोसाइटी. जो मतलब टीचर्स कहते हैं ना GPA कम आएगा, तो दे यूज्ड टू बी लाइक ये भी हमारी सोसाइटी में. लेकिन एनीवे, तो आई वुड सजेस्ट कि यार ये चीज़ें करनी चाहिए. दीज आर एज एसेंशियल एज योर पढ़ाई. अगर आप ये नहीं करते, आप किसी से कन्वर्स नहीं कर सकते हो. आपके पास आपके अंदर कोई स्किल्स और नहीं होती. यू डोंट हैव पीपल स्किल्स, यू डोंट हैव मैनेजिंग स्किल्स. और ये आपको सिर्फ तभी आते हैं जब आप इन चीज़ों में घुसते हो, ठीक है. प्रॉबेबली पहले महीने 2 महीने तक आपको कुछ नहीं आता. यूल प्रॉबली फील है कि आपको कुछ भी नहीं आता एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन यू लर्न विद टाइम, राइट. So I think you should enjoy your university life, because after that it becomes so tough. You don't get your days off, you don't get any vacations, कुछ भी नहीं होता. तो GPA I think hitting the 3 mark is like good enough, या even 2.5 is good enough. तो उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है यार, कुछ नहीं मिलता. 3 तक रखना चाहिए. कुछ नहीं मिलता. Like I mentioned पहले भी कि फर्स्ट जॉब के लिए काफ़ी हेल्प आउट करता है. But that's it. उसके अलावा लाइक नोबडी इज़ गोना आस्क यू कि अच्छा यार तुम्हें मेडल मिला था या तुम्हें ये हुआ था. नोबडी इज़ गोना केयर उतना ज़्यादा. तो पहली नौकरी मिल गई. फर्दर MS और PhD भी अगर आपका प्लान है, देन ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट एंड डिफरेंट कन्वर्सेशन कि यार नहीं, अब आपको अपने एकेडमिक्स बहुत अच्छे करने हैं. आई थिंक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, और उस हिसाब से एक बड़ा सा गोल बनाना चाहिए, फिर उसको ब्रेक डाउन करना. If you have that goal in mind, but I think just focus on पढ़ाई is like very unhealthy. नहीं करना चाहिए. ये मैं अपने आप को बता रही हूँ. और एक ही चीज़ पे फोकस हो, और वो लाइक थोड़ी सी बुरी होना शुरू हो जाए ना, तो आपकी पूरी लाइफ comes crashing down actually. मतलब आप, और आजकल तो ये सीन है कि मतलब every other person you meet उसको कोई डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, and that's because of this increasing pressure उनके ऊपर कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. मतलब रैट रेस बनी. चिल करो, रिलैक्स करो, you'll get there. It's gonna be okay. I just want to tell people कि यार हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन just don't sacrifice your मतलब years इस चीज़ के लिए कि बस GPA लेना है, बस medal लेना और things like that. Just I think save that energy and save that drive for after you graduate for your professional life. क्योंकि उसमें I think आपको फिर if you want to set yourself apart from the rest of the crowd, फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, जो कि हम लोग ने भी की है. एंड Pookidev स्टार्ट करना, उसको यहाँ तक पहुँचाना, वो सारा कुछ वाज एन वेरी मोन्यूमेंटल एफर्ट. उसके बाद एंडिंग अप इन अ प्लेस लाइक रेन फॉर मी, दैट वाज समथिंग दैट वाज अ टेस्टामेंट टू what I had been doing for the past year. 15-16 hour work days लगाना, उसमें सारा कुछ करना. That is what leads you to that point where you stand out from the rest of the crowd, right? And I think that would be my another piece of advice for graduating students. Just focus on something that helps you stand out, and that could be anything. It's different for everybody. कुछ लोग हैं जो certifications की तरफ चले जाते हैं कि very initially, even before graduating या for and after graduating, they start to do certifications. उससे क्या है कि that is a word of confidence of your skills, right? कि यार आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, that's a stamp on your badge कि भाई आप सर्टिफाइड हो, आपको ये चीज़ आती है. एटलीस्ट जिस भी लेवल की आप कर रहे हो उस लेवल तक आपकी आती है. तो you don't have an advantage उस तरीके से. उसके अलावा just branch out, learn different skills, breadth बनाओ अपनी, जिस तरह से पहले ही मैंने mention किया.
और दूसरी चीज़ आपने दूसरा सवाल पूछा था कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब, हाउ टू लैंड दैट जॉब. एक जो चीज़ आई थिंक फ्रेश ग्रेजुएट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार निकलते साथ पहली 5-6-7 जॉब्स में अप्लाई करेंगे, उनमें से 4-5 के इंटरव्यू देंगे, 2 या 3 की ऑफर लेटर आ जाएंगी. दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ इन रियलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं अगर अपनी बात करूँ, आई हैड अ शीट, गूगल शीट मैंने बनाई हुई थी, उसमें ट्रैक करा था मैंने कहाँ अप्लाई किया, किस किस पोजीशन के लिए. And once I got the job offer from QuestLab, I looked back on that sheet and मैंने 45 different companies में apply किया हुआ था. 45 different positions. कुछ positions एक ही company में different थी. That was very rare. लेकिन जैसे Telenor में 2-3 different positions से की हुई थी, systems में की हुई थी. लेकिन 45 different job applications जिनमें से मुझे कॉल बैक आई थिंक 3 या 4 की आई थी. 2 इंटरव्यूज हुए थे जिनमें से एक मुझे जॉब मिल गई थी. तो दोज आर वेरी रियलिस्टिक ऑड्स जो आधे से ज़्यादा आवाम को दे विल हैव टू गो थ्रू दोज ऑड्स. तो डोंट लूज होप, just keep trying, apply to a lot of different places, diversify your approach, diversify your reach, and just keep going. You'll get there eventually, inshallah. एक और चीज़ that matters a lot is कि मतलब a lot of people think कि अगर आप CS grad हो तो your coding is the only thing that matters. It is not. आपके soft skills बहुत important होते हैं. जब आपका interview हो रहा है, if you're not able to get your message across, you know, तो you're not gonna get hired. Honestly, वैसे मतलब some people might relate to you and look across that, लेकिन so many people won't. Many employers won't. They'll like यार इसे बोला ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हो, right? उसके अलावा भी once you get your soft skills तो आप not just कोडिंग पोजीशंस, नॉट जस्ट जूनियर लेवल पोजीशंस, आप मैनेजिंग पोजीशंस पे लग जाते हो. और इसके मतलब साथ इवन द टेक इंडस्ट्री के अंदर आई हैव सीन सो मेनी CS ग्रेड्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग में चले जाते हैं, जो कि एड्स में चले जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ों में. तो इसके अंदर व्हाट मैटर्स इज योर सॉफ्ट स्किल्स. और ये इतनी अच्छी और इतनी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं और मतलब ये मिल भी जाती हैं. तो आई थिंक सिर्फ ये फोकस नहीं होना चाहिए कि यार मुझे बस सारी ज़बानें आनी चाहिए, लाइक नॉट वो लैंग्वेज आनी चाहिए, बट दूसरा मतलब आपको बात करनी आनी चाहिए. सॉफ्ट स्किल्स मैटर अ लॉट, जो कि आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ में पीपल मतलब एटलीस्ट आई थिंक फास्ट में इतना फोकस नहीं था इस चीज़ का, एटलीस्ट हमारे टाइम पे. तो होना चाहिए. दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. और आजकल तो रिमोट जॉब्स वाला ज़माना है, तो लाइक बाहर वाली कंपनीज दे हायर लाइक इस तरह के पीपल जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, बेसिकली सारी कोऑर्डिनेशन. और लेकिन ऑब्वियसली अगर आप किसी CS रिलेटेड प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं, मैनेजमेंट करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो CS ग्रेड ही करेगा, कोई BPA का आगे नहीं करेगा. तो या नॉट नेसेसरी वैसे. अच्छा, BPA वाले आई वुड से आर काइंड ऑफ to an extent better fitted for the role depending on the project. क्योंकि उन लोगों ने सीखी है मैनेजमेंट, हम लोगों ने लेकिन टेक्निकलिटीज again depending on the project, right, depending on the role at hand. So both of those skill sets fit into that role. And then one interesting other vertical that CS grads can look into is product. So product is a very different vertical, a very different ball game कि भाई आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट को लेके चलना है और रिसर्च करनी है और उसको जो है मैनेज करना है सारा कुछ. तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है फॉर CS ग्रेड्स टू एक्सप्लोर. या यू आर राइट. मैंने भी अभी बैठे बैठे रियलाइज़ किया कि लाइक अगर हम लोग लाइक जो वेबसाइट बनानी है इम्पोस्ट आर्ट वगैरह के लिए, तो ऑब्वियसली वो हम लोग ही मैनेज कर रहे होंगे. हमने तो CS किया नहीं. या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि यू नो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, व्हाई नॉट. हम लोग अभी बहुत सारे लाइक डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं और यही सीन है कि फ्यूचर कोलैबोरेशन, किसी कोई प्रोजेक्ट पे काम, ये वो. और आई थिंक कि एंटरप्रेन्योरशिप और पाकिस्तान की मार्केट इसी तरह ग्रो करेगी कि इफ़ पीपल वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडियाज, शेयर इंफॉर्मेशन. एक वो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग छुपाते हैं, वो एक वो नज़र वाला एलिमेंट आ जाता है और एक वो दूसरी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. आई थिंक मैं तो यही समझता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन हर चीज़ शेयर कर दो, आप अपने पूरे बिजनेस मॉडल शेयर कर दो, क्योंकि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर आएगा आप ही बेहतर होगे उससे. बिल्कुल ऐसे ही. Those competitors will drive you to be better. Will drive you to become a better version of yourself. तो आई थिंक दैट्स और फिर हम सारे बड़े होके एक वो मार्केट को कैप्चर करें. in an ideal world.
या लाइक पाकिस्तानी मार्केट का आई थिंक मसला यही है कि वो एक जगह पे आके सब रुक जाते हैं क्योंकि वो कमा रहे हैं लाखों में, तो वाई शुड दे ग्रो. बिल्कुल. आई थिंक कि अगर वो टेक्नोलॉजी ऐड कर लें, या यहाँ पे जो वेस्टेज वाला अंडे वाला बर्गर है, अगर वो इस चीज़ को अपना प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके. क्या याद करा यार. वो बहुत पसंद है. So good. या सो वो अगर अपने लाइक प्रोडक्ट पे फोकस करके लाइक रेसिपी को लोगों को देना शुरू कर दे, तो हाउ गुड दैट विल बी. क्योंकि मुझे तो नहीं लाइक नज़र आता इतना फिट अंडे वाला बर्गर. या मैंने इसमें बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने बहुत खाया है. हम लोग रोज़ खा रहे हैं, तो अभी मेरे से अभी नहीं हुआ. हाँ, कल ही. Definitely, I think we need to grow up and understand that sharing information does not mean failure. It means more access to even more success. कि आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे आपके आइडिया के बारे में, आपको डिफरेंट इनपुट्स मिलेंगी. आप लोग आपको गाइड करेंगे कि यार ये ऐसे भी हो सकता है. एंड उसमें लेकिन अगेन वन अदर थिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी इज कि यू नीड टू बी ओपन टू ओपिनियंस. यू नीड टू बी ओपन टू all of this different feedback, positive feedback भी, negative feedback भी. लेकिन जो अगर नेगेटिव फीडबैक भी है, यू नीड टू फाइंड अ वे टू टेक दैट इन अ पॉजिटिव सेंस एज वेल, एंड ऑलवेज यूज एवरीथिंग टू help yourself grow, make yourself become better. और एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छी बात है ये. बिल्कुल. अगर कंपटीशन आ रहा है, अगर लोग ग्रो कर रहे हैं, उनको एक अच्छी सर्विस मिल रही है, और पीपल आर फिगरिंग आउट कि एक कोई भी चीज़ है उसको लाइक फुल पोटेंशियल पे किस तरह पहुँचा रहे हैं. और वो इन्वायरमेंटल वाली बात भी आ जाती है कि आप अपनी रिसोर्सेज को मैक्सिमम अच्छे तरीके से किस तरह यूटिलाइज करें. एंड आई थिंक यू माइट अगर आप ऐसे करते हो तो यू माइट एंड अप हेल्पिंग सो मेनी पीपल जो कोई प्रॉबेबली किसी चीज़ में स्टक हो, एंड दैट्स जस्ट गुड ऑन योर हार्ट, आई थिंक. अब आते हैं आपकी लाइफ पे. ओह माय गॉड. या सारा कुछ तो बता दिया यार. और क्या पूछना है? नहीं. सो अब बहुत सारी चीज़ें, फास्ट बिजनेस, आपकी जॉब, सब कुछ, तो इसमें लाइक शादी कहाँ आती है? यार 1 साल होने वाला है शादी का. Oh, nice. We have an anniversary this month. Oh, nice. शादी यार, और लाइक वो भी तो एक कमिटमेंट है, लाइक फुल टाइम जॉब तो नहीं कहूँगा, लाइक एक फुल टाइम थिंग तो. Definitely. हाँ, obviously. So I think after COVID started, सारे घर में बंद हो गए, तो एक सबको एक सेंस ऑफ लोनलीनेस होना शुरू हो गई थी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक we decided to have a grown up adult conversation. We'd been friends for since first 3.5 years उस point तक. Since first semester हम लोग best friends थे, really close, and we decided to have that conversation कि यार okay, let's think about it on those lines कि okay, we understand each other, we have the same drive, we have the same mindsets, and our family dynamics match as well, which is I think very important in our society कि you need to make sure that if you're considering another person for spending your entire life with them, you need to take family dynamics into account as well, which I think is one thing that a lot of people miss out on considerations. So everything was aligning, and we decided okay, let's complete our degree first, then we'll talk about it with our parents at home, and then we'll see where that goes. And we, as soon as we graduated, we talked to our parents, and फिर उसके बाद जो normal आपके जो तरीक़ेकार होता है, families meet the traditional way. Pehले we got engaged in January last year. 21? Yeah. 21. This is gonna bite me back. And December 21 में we got married. Nice. और उसके बाद फिर यही है कि it's kind of what we expected to an extent. मतलब ये सीन होता है कि we're very committed to our careers, very committed to our jobs. और सुबह हम लोग 10 बजे पहुंच जाते हैं, और इसमें मैंने अब पहुंचना शुरू किया. पहले मैं अपनी मर्जी से ही आराम से जाता था, लेकिन अब हम लोग सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच गए, रात को 7-8 बजे फारिग होके घर आ रहे हैं. और आधे लाइक आपके ऑफिस करीब हैं?
अब करीब है. Yes, we have a new office. Rain has a new office in I-10 now. Nice. और अब it's literally one street over from Syha's office. So we go together. अब साथ ही आना जाते थे. उससे पहले we were going in different cars. खैर लेकिन उसके बाद ये कि घर आके भी आधे से ज़्यादा दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोगों के पास we have leftover work. और एक तरफ मैं बैठा होता हूँ लैपटॉप लेके, दूसरी तरफ साया बैठी होती है. और हम लोग make it sound so miserable though. It's not. It's very fun. नहीं like अगर I enjoy that fact. At the end of the day we were together और हम लोग जो है साया अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ. It's like exciting to have someone जिसके साथ या जिसके साथ नहीं भी, like you are building something. आप अपने अपने तौर पे करें, लेकिन if you have a partner that understand, so that's very important. Yeah. And somebody, I think one other advantage is sharing the same domain knowledge as well. Like अगर मैं कहीं फंसा हुआ हूँ तो I can take Syha's help कि यार ये मैं जरा थोड़ी सी बता देना ये कैसे हो गया, and vice versa. And I think that's very very interesting thing to have कि उसे एक जो बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग चीज़ है, you always have something to talk about. आप और कुछ नहीं तो काम के बारे में ही बात कर लोगे और मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे रह के आप बात कर सकते हैं. आज ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया आज ये. Nice. इंटरेस्टिंग होता है. तो आपकी कॉन्वर्सेशंस मुझे लग रहा है कि like it is good to have commonality. Definitely. obviously. Definitely. Common interests. वो common opposite attract drive. वाली चीज़ का क्या सीन है फिर उससे Personalities तो I would definitely say we're very opposites. To an extent. जो baseline चीज़ें होती हैं ना वो मैच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी values बहुत ज़्यादा important है कि they're aligned. And sense of humor I think is very important. That should align. Yes. Sense of humor साथ दूसरे का बर्दाश्त level is very important. And लेकिन नहीं I think opposites attract वाली thing is kind of true ही कि जो उसके ऊपर वाली सारी चीज़ें, Syha is very introverted और मैं थोड़ा सा little towards the extroverted side where I like to hang out with friends. I like to socialize. So that's I think habits be like different, but और वैसे भी जब शादी हो जाती है तो you have no other option, right? You have to get along. It is what it is. It is what it is. No way out. Syha complains, I just have one answer. तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं. शादी हो गई. This is something we did say to each other. आपके there's no way out. It is what it is. It's your problem. फिर अब एक और लास्ट चीज़ पे आऊँगा. और ये एक अलग अलग कह रहा हूँ, आपसे भी सवाल होगा, आपसे भी सवाल होगा, और वो है वो लाइक जो अंदर से आपकी सोच है ना, लाइक what are you like passionate about personally? Do you want to go first? That's such a hard question. मुझे सोचना पड़ेगा. होता है ना कि what am I passionate about? और ये like open ended है, आपने जितना टाइम लेना लें, क्योंकि I'm just like trying to know कि एक होता है ना कि कन्वर्सेशन हमने ये सारा प्लान किया हुआ था, सब कुछ था, लेकिन एक बहुत like honest opinion चाहिए. I think two things that I'm very very passionate about is one of it is engineering. I'm very passionate about engineering. Okay, I enjoy solving complex engineering problems. I enjoy building products, building systems that cater to real life problems and that serve a large scale population, large scale user base को serve उनकी problem solve करिए. तो I really enjoy that. And the second I would say is trying to get to a position where you don't ever have to turn away somebody looking for help. So that is something that I'm not passionate about. I'm passionate to strive to reach, right? I'm passionate to reach that point जहाँ पर मैं लोगों के उस तरह से help कर सकूँ. And that I think has come to me from my father. That is something that I have taken away from him. कि कोई भी किसी भी चीज़ बंदे को randomest चीज़ होगी, कोई भी help चाहिए होगी तो कोई ना कोई एक्टिवली सोल्यूशन उसके लिए निकालना, उसको हेल्प करना. अगर खुद नहीं कर सकते तो कोई और सोल्यूशन किसी और के थ्रू निकलवा के देना. तो
and that obviously comes with time. Comes with time, with your, as you grow as a person, in terms of money as well. Wealth के साथ आती हैं चीज़ें, position के साथ आती हैं चीज़ें, power के साथ भी आती हैं चीज़ें. लेकिन like you can't like help in someone अगर आप खुद strong ना हो. बिल्कुल. And by power I mean like financial, emotional भी even. And a lot of different things. Yeah. So that's me. Syha? Oh God. Yeah, actually to end. So since you talked about the engineering part, so when it comes to the engineering part, I am very passionate about databases, obviously. Yeah. I just love optimizing. मतलब like मैं जैसे भी बताई थी कि कोई काम हो, कोई milestone हो, तो like मेरे सबसे बड़े जो milestones होते हैं काम में, they're like यार इस सिस्टम का रिजल्ट 1 मिनट में आ रहा था, मैंने milliseconds में कर दिया. Like वो चीज़, I'm passionate about She's pretty that. good at it. Oh, thank you. Like I work day and night to do that. I'm like I would happily do that. लेकिन उसके अलावा I think I'm like slowly working towards my dream goals, जो कि obviously वही थे, like I wanted to do something in arts and that stuff. So and I want to make businesses out of those actually. So that's my end goal, and that's what I really want to do, and hopefully we'll start working on it soon. Inshallah. लेकिन उसके अलावा all of it being like I don't know if it's very cliche or anything, but I just really want to help others around me. I just feel like कि यार मतलब कोई मेरे पास आए, उसको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, मुझे मेरी वो सिचुएशन ना हो कि मैं उसको कहूँ कि यार मेरे से नहीं हो सकता. ये तो आप कॉपी कर रही हो. नहीं no really, like even if it's like कोई नॉलेज वाइज हो गई या फाइनेंशियली हो गई, एनीथिंग लाइक दैट. आई जस्ट वांट के यार जो भी मेरे गिर्द कोई भी लोग हो, जिधर मैं लाइक वेयर आवर ऑफिस इज, वहाँ पे ना उधर से थोड़ा सा आगे एरिया है, थोड़ा सा ना वो स्लम्स टाइप एरिया है, एंड उधर से ना रोज़ गुजरते हुए आई सी किड्स रनिंग टूवर्ड्स फूड एंड ऑल. तो मुझे इतना होता है कि यार आई जस्ट वांट टू बिकम समवन के वेयर आई एम एट अ पोजीशन के बस ना अपना सारा कुछ दे के ना किसी तरह ऐसे लोगों को अपलिफ्ट कर दो, बिकॉज जैसे वो होता है ना कि इसी तरह के लोगों में से देन जेम्स भी निकलते हैं. आई जस्ट आई नो वेरी क्लीशे लाइक आई सेड, बट दैट इज जस्ट समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, एंड like alhamdulillah I've been working for it as well, but like like I said, core values. मतलब एक मेरे लिए एक NGO बनाना वाला सीन भी एक है, और स्पेशली ख़ास करके आई वॉन्ट टू फोकस ऑन यू नो हेल्पिंग वुमेन आउट, वेदर इट्स लाइक करियर वाइज और जस्ट वैसे इमोशनली, और इवन इफ़ यू लुक अराउंड तो जो हालात होते हैं औरतों के, जस्ट हेल्पिंग दैम आउट सम हाउ इन सम वे. तो वो चीज़ें इट्स जस्ट लाइक दैट. या थोड़ी ज़्यादा सेंटी हो जाऊँगी, सो आई थिंक लेट्स Yeah, so anyways, really like happy to have you guys here. Happy to be here. Yeah, and really impressed by you guys. Thank you. I wish you well. Thank you. And likewise. Wish you happiness, and I hope you all. How many people are we? All two of you. Are you counting our personalities? Multiple personalities. Multiple personalities. Multiple personalities. Like it's a dark humor. Yeah. अच्छा डार्क ह्यूमर पे बात करें या एंड कर दें? I think end करते हैं यार. वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. Yeah. Like हम थोड़ा सा. I don't want to get into that. चलिए वो पॉडकास्ट के बाद बात करते हैं. हाँ उसके बाद करें. Anyways, so wish you well and thank you so much. Likewise. Thank you. So, thank you for having us. You're welcome. Very fun and interesting conversation. Yeah, it was very fun. I forgot we were on camera. We are not on camera. They're mobiles. Viewers को तो नहीं पता था ना यार, आपने उनको Viewers को सबको पता है. अच्छा बता दिया. Oh, very transparent. That's nice. Yeah, middle class podcast. Yeah, love the setup वैसे. Yeah, love the studio. Thank you. All thanks to Mr. Sultan, जिसने love it. Yeah, इसने मेहनत करके बनाया और मैं आके बैठ के हम बातें करता हूँ. Yeah, anyways, guys, don't
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना. इंस्टाग्राम स्टोरीज में ऑल द फन स्टफ हैपन्स बाय द वे, तो उसको फॉलो कर देना. फिर उसके बाद हाँ सब्सक्राइब भी कर देना. उसके अलावा या कट, थैंक यू. ये